Hello, hi. Hey everyone, good afternoon. My name is Amit Surana. I am here with our first lecture on time, speed and distance. This is our 21st lecture on arithmetic. With this topic, our arithmetic ka scene the end ho jayega. After that, we'll be starting with algebra, alright? So far we've completed percentages, profit loss discounts, simple and compound interest, ratio proportion variation, averages, mixture alligation, time and work, and in the last class we had completed pipes and cisterns. Yes, what are we going to do today? Today we are going to start with time, speed and distance. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer with over 7 years of experience and I've trained over 2.5 lakh students. Hello Diksha, welcome everyone. This is the link to the Telegram group. The link is also given in the description below. You can click on it to join it. Good afternoon Pratap. And you can also download Unacademy's learning app if you haven't done it yet. Yeah, if you haven't downloaded Unacademy's learning app, do it. Just like we give so much free content on our YouTube channel, there's so much free content available on the app as well. चलो स्टार्ट करेंगे. हेलो गुड आफ्टरनून अनुज, विनीत, गुड आफ्टरनून खुशाल. चलो गाइस फटाफट से वीडियो पे लाइक कर दो. सेंड इन अ यस इफ यू आर रेडी फॉर आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. जल्दी से यस भेजो. गुड आफ्टरनून समर. चलो, so the kind of concepts that we'll be covering under time, speed and distance would be: one, relationship between time, speed and distance and what happens when one of them is constant. Second, we'll be looking at unit of speed, how when the unit changes the way we answer the question should modify. Third, we'll be looking at average speed. Then we'll be looking at relative speed, effective speed. Under effective speed we have boats and streams and escalators. Under relative speed we have trains and races. All right, so these are the concepts that we'll be covering under time, speed and distance. Good afternoon Samarth, good afternoon Akash, superb Kushal, Prince, good afternoon. Amazing Kushal. चलो शुरू करेंगे with relationship, right? We know that speed is nothing but distance upon time, correct? Speed is basically what? How many kilometers you can travel in an hour. Yes, that's speed. So distance upon time. So can I say that distance is equal to speed into time? Yes, can I say distance is equal to speed into time then? We need hopefully three. अगर आप लोग 1 बजने के बाद शुरू ना कर दो कि सर 1 घंटा हो गया, तो 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे, वरना फिर 4 या 5 जाएगा. ठीक है. चलो गुड आफ्टरनून. चलो स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून प्रणय. Alright, so now if I say here that my speed is constant, I can travel only at 60 kilometers per hour. Yes, if my speed is constant, I can travel only at 60 kilometers per hour. Then in 1 hour, how much distance can I travel? जल्दी बोलो ताकि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके फिर एग्जांपल्स में चले. अगर मेरा स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा? जल्दी गाइस. 60 किलोमीटर. ब्यूटीफुल. वहीं 2 घंटे में हाउ अबाउट 2 आवर्स? इन 2 आवर्स विल बी एबल टू कवर 120 किलोमीटर्स. व्हाट अबाउट हाफ एन आवर? दैट इज 30 मिनट्स. will be able to cover 30 kilometers, correct? So what's going on here? Here we notice that when the time doubles, distance also doubles. When the time goes half, distance also goes half. So can we say here that when speed is constant, then distance and time are directly proportional? When speed is constant, distance and time directly proportional. Yes,
Now what if I tell you that the time given to me is 2 hours? The time given to me is what? 2 hours, okay? If the time is 2 hours, if I have to travel, let's say at 60 kilometers per hour, how much distance will I be able to cover, guys? अगर मैं 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में चलाऊंगा 2 घंटे के लिए, कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? हाउ मेनी किलोमीटर्स? We know that distance is speed into time. This is speed, this is time. कितना हो जाएगा? 120 kilometers. Beautiful. वहीं पे if I were to travel let's say at 30 kilometers per hour, तब मैं कितना डिस्टेंस कवर कर पाऊंगा? If my speed is 30 kilometers per hour, 60 kilometers, right? If my speed is 120 kilometers per hour, then it will become what? 240 kilometers. So what is happening? What is happening when the time is constant? अगर मैं half the speed पे चलाऊं तो मेरा distance भी half हो जाता है. अगर मैं double the speed पे चलाऊं तो मेरा distance भी double हो जाता है. Correct? So can I say that when time is constant, distance and speed are directly proportional? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा, या जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा. करेक्ट? नाउ फॉर आवर फाइनल टेक, इफ आई टेल यू दैट द डिस्टेंस आई हैव टू ट्रैवल इज कांस्टेंट. डिस्टेंस आई हैव टू ट्रैवल इज कांस्टेंट. डिस्टेंस इज 100 kilometers. If I travel at 20 kilometers per hour, how much time will it take me, guys? If I travel at 20 kilometers per hour, मेरे को कितना टाइम लगेगा? 5 hours. Beautiful, very good. If I travel at 10 kilometers per hour, will it take me 2.5 hours? No, it will take me 10 hours. Yes. If I travel at 50 kilometers per hour, क्या हो जाएगा? My time becomes 2 hours, right? So what is going on here? When my speed goes half, the time doubles. जब मेरा स्पीड हाफ हो जाता है तब टाइम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है. 5 के बदले 10 घंटे लग रहे हैं, राइट? व्हेन माय स्पीड गोज 2.5 टाइम्स, यस, व्हेन माय स्पीड गोज 2.5 टाइम्स, मतलब क्या? 5/2 टाइम्स, तब मेरा टाइम क्या हो जाता है? 2/5 टाइम्स. रेसिप्रोकल 5/2 यहाँ पे क्या हो रहा है? 2/5. सो व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, then can we say that speed and time are inversely proportional? Yes, correct, Pranay. Yeah, speed and time are inversely proportional. कब? जब distance constant हो तब. Yeah, so यहाँ पे whatever rules we have for directly proportional के जो भी rules होंगे यहाँ पे लगेंगे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल के जो भी रूल्स होंगे वो यहां पे लगेंगे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्या रूल्स हैं? एक तो है A/N रूल. आई होप यू गाइज रिमेंबर दिस, है ना? A/N रूल. इसका क्या मतलब है? अगर कोई एक टर्म A/N से इंक्रीज होता है तो दूसरा टर्म A/N+A से डिक्रीज होता है. ठीक है? अगर एक टर्म A/N से इंक्रीज होता है तो दूसरा टर्म, जैसे अगर स्पीड A/N से इंक्रीज हुआ तो टाइम क्या हो जाएगा? A/N+A से डिक्रीज हो जाएगा. करेक्ट? यस. और यहां पे क्या लगा सकते हैं अपन? सक्सेसिव एप्लीकेशन लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड दोनों डिस्टेंस और टाइम इंक्रीज हो रहे हैं या जो भी. ठीक है, चलो अब एग्जांपल्स करेंगे. लेट्स स्टार्ट डूइंग एग्जांपल्स. हियर्स योर फर्स्ट वन. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन आंसर इट. शुरू करो पहला क्वेश्चन. आई एम सॉरी, नंबरिंग गलत है यहाँ पे. दिस इज सपोज टू बी क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नंबरिंग उल्टा सीधा हो गया. चलो, क्विकली ट्राई दिस क्वेश्चन. Vineet says 30. Others?
इक्वेशन से सॉल्व कर लो पहले. टू बिगिन विथ स्टार्ट विथ इक्वेशंस, देन वी कैन वर्क थ्रू द अदर वेज ऑफ डूइंग दिस. ठीक है. आकाश से 40. गुड आफ्टरनून लिखना. मन तो बहुत कुछ कर रहा था समर्थ, बहुत कुछ कर रहा था, बट ठीक है, कभी कभी मन को काबू में रखना चाहिए. हाँ भाई, हो गया. सबसे पहले इक्वेशन से ट्राई करेंगे. ठीक है. We'll start with equations. I'll help you understand the logic behind it. All right. So let's say अपना usual speed s है. Our usual speed is s. Usual time taken is t, and the distance to be covered from home to market is d. So can I say कि अपने पहले equation में distance is equal to speed into time? Yes. Now what are they saying? Walking at 5/7 of the speed. Speed क्या हो गया? 5/7 हो गया. Yes. टाइम कितना लग रहा? 16 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहा. टाइम क्या है? 16 मिनट्स एक्स्ट्रा, क्योंकि 16 मिनट लेट पहुंच रहे हैं. बट डिस्टेंस तो सेम है ना. डिस्टेंस तो सेम है घर और मार्केट के बीच में. तो अभी दो इक्वेशन हो गए. दोनों को अगर मैं बैठ के सॉल्व करूं, इफ आई सॉल्व दिस, डी एंड डी इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट करूंगा. s इंटू टी इज इक्वल टू 5/7 टाइम्स s इंटू टी प्लस 16. s अपना कैंसल हो गया. टाइम क्या आ रहा है? 7 टाइम्स टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम्स t प्लस 80. 5 इंटू 16 80. और व्हाट आर यू गेटिंग? 2 टाइम्स टाइम इज 80 और टाइम इज इक्वल टू 40 मिनट्स. यस, ये हो गया आपके स्टैंडर्ड इक्वेशंस को रख के सॉल्व करने का तरीका. इज इट क्लियर एवरीवन? आकाश 56 नहीं भाई, व्हाट इज द यूजुअल टाइम पूछा है. यूजुअल पूछा है, नॉट करंट टाइम. ओके, सो यूजुअल कितना? 40 मिनट्स. डन. नाउ द सेकेंड वे इन विच वी विल डू इट इज यूजिंग रेशियोज. ओके, ध्यान से देखना, रेशियो से कैसे करेंगे इसको. डिस्टेंस कांस्टेंट है. डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. करेक्ट. स्पीड का रेशियो क्या है? यूजुअल एंड करंट. ओके, यूजुअल करंट. स्पीड का क्या रेशियो है? अगर ये 7 है, अगर ये 7 है तो ये 5 है. करेक्ट. अगर मैं 7 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चलाता हूं नॉर्मली, अभी मैं क्या कर रहा हूं? उसका 5/7 ऑफ 7 इज व्हाट? 5. एग्रीड एवरीवन? हाँ बोलो एक बार अगर समझ में आया तो. ये इफ माई स्पीड इज 7 किलोमीटर्स पर आवर यूजुअली, तो उसका 5/7 क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर्स पर आवर, है ना. यस. तो अगर स्पीड का रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड इज 7:5, देन द रेशियो ऑफ टाइम विल बी हाउ मच? टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा, 5:7. क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यस एवरीवन? अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि दोनों टाइम में, यूजुअल और करंट टाइम में कितना डिफरेंस है? 16 मिनट्स का डिफरेंस है. यूजुअल टाइम और करंट टाइम में कितना डिफरेंस है? 16 मिनट्स का. तो इसको मैं अगर 5x ले लूं और इसको 7x ले लूं, तो हमें क्या पता है कि 7x माइनस 5x दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना? 16 मिनट्स. तो हमें क्या मिल रहा है कि 2x इज 16 मिनट्स और x इज 8 मिनट्स. बट हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि यूजुअल टाइम क्या है. तो यूजुअल टाइम क्या है? 5 into x. सो यूजुअल टाइम which is nothing but 5 into x, that is 5 into 8, 40 minutes. Done? Yes. Clear? रेशियो वाला सबसे इजी है. एक्चुअली रेशियो वाला सबसे इजी है.
ठीक है प्रणय 5:7 कैसे? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर स्पीड का रेशियो 7:5 है तो टाइम का रेशियो ऑपोजिट हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा 5:7। यस, बट इसको आप एक और मेथड से भी कर सकते हो। इन दिस सिचुएशन इट्स नॉट द इजीएस्ट, सबसे इजी तो नहीं है, बट हाँ इट विल हेल्प यू। ठीक है, A/N रूल। A/N रूल के हिसाब से अगर स्पीड A/N+A से डिक्रीज हो रहा है तो टाइम क्या होना चाहिए? A/N से इंक्रीज होना चाहिए। करेक्ट। अभी मेरा स्पीड 1 से 5/7 हो गया, 1 से 5/7 हो गया, मतलब कितना डिक्रीज हुआ? 2/7 डिक्रीज हो गया। अगर मेरा स्पीड 2/7 से डिक्रीज हो रहा है तो टाइम कितना इंक्रीज होना चाहिए? जल्दी से बताओ। अगर स्पीड 2/7 से डिक्रीज होता है तो टाइम से इंक्रीज होता है? क्विकली टेल मी गाइस, बताओ जल्दी से। अगर स्पीड मेरा 2/7 से डिक्रीज हुआ तो टाइम क्या होना चाहिए? 2/5 से इंक्रीज। तो अपने हिसाब से ये जो 2/5 ऑफ द यूजुअल टाइम इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ है? 16 मिनट्स। सो व्हाट इज टाइम? 16/2 8 into 5 40 मिनट्स। गॉट इट एवरीवन? या आ गया सबको समझ में? I hope there are no confusions in this. 3 मेथड बताया हूं मैंने। I've showed you 3 methods of doing the same thing. इस केस में, ऐसे वाले केस में जहां पे they've given you the not decreased but the decreased value, रेशियो सबसे इजी है। बट अगर आपसे A/N का दिमाग लगाया जाता है तो A/N will be the second method. First method will be ratios. सेकेंड वन विल बी A/N। इक्वेशन आपका प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी मेथड होना चाहिए। व्हेन रेशियोज एंड A/N बोथ डोंट वर्क, दैट इज व्हेन यू विल गो फॉर इक्वेशंस। ठीक है, यस प्रताप, इक्वेशंस इजी लगेंगे, इक्वेशंस बहुत इजी लगेंगे, बट इक्वेशंस में चला जाएगा। ओके चलो, क्लियर है सबका? ये फटाफट से हाँ बोल दो, वीडियो पे लाइक कर दो, अगला क्वेश्चन चलेंगे फिर। क्विकली से यस, हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, विल मूव ऑन टू द सेकेंड वन नाउ। हियर्स द सेकेंड एग्जांपल। ट्राई दिस आउट। हाय आशना, कराएंगे ना, डेफिनेटली कराएंगे आशना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वी विल स्टार्ट अ न्यू कोर्स। Go ahead, try this one guys. Thank you. Okay. Likhna is saying A. आयुष saying B. समर्थ saying आपका मन नहीं कर रहा गाली देने के इंटरनेट वालों को। भाई अभी बीच में मत बोलो, लैग हो गया ऑलरेडी। बीच में मत बोलो समर्थ, ऑलरेडी लैग हो गया भाई, वो सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग टू एवरीथिंग। कुशाल एक और बार ए बोलो, मैं बताता हूं आपको ए का मतलब क्या होता है। एक और बार ए भेजो। ओके, a certain distance is covered by a train with certain speed। ठीक है, तो let's say कि यूजुअल क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, इसको अपन स्पीड 1 ले लेंगे। नाउ व्हाट आर दे सेइंग?
They're saying that if half the distance is covered, अगर आधा distance d by 2 is covered in double the time 2t, then s2 will be what ratio of s1 पूछ रहे. तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? d by 2 can be written as d by 4 times t. Can I write it as 1 by 4 d by t? 1 by 4 d by t, करेक्ट. तो हमें क्या चाहिए? S2 is equal to 1 by 4 times S1. D by T क्या है? S1. So the ratio of this speed to that of original, this speed माने नया speed by original is how much? 1:4. So the answer is option A, 1:4, not 4:1. 4:1 is what? Duplicate नहीं, sorry, trap. ओके, 4:1 ट्रैप है. इसका मतलब है कि नया स्पीड विल बी 4 times द ओल्ड स्पीड, नहीं उल्टा. ठीक है, यस. ऑल्टरनेटिवली आप यहां पे अस्यूम करके कर सकते हो. यू कैन अस्यूम इफ यू वांट टू. यस, लेट्स से दैट द स्पीड इज ओके, डिस्टेंस इज 10 kilometers, half the distance, double the time. Distance is 10 kilometer, speed is 10 kilometers, time is 10 hours. ठीक है, assume कर लो. तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम विच इज 10 by 10, 1 kilometer per hour. ओके, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि नए केस में, इन द न्यू केस, डिस्टेंस बिकम्स हाफ, 5 kilometers, time becomes double, 20 hours. तो स्पीड क्या हो जाएगा? What is the speed? Speed is distance by time which is 5 by 20, जो कि क्या है? 1 by 4. Yes, इन दोनों स्पीड का रेशियो क्या होगा? 1 by 4 is to 1, which is nothing but 1 is to 4. ठीक है, ये आप अस्यूम कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन अस्यूम दिस, या फिर इक्वेशन से, जो भी आपको सही लगे. ठीक है, डन. ऑप्शन ए इज द राइट वन. ऑलराइट. सर, कैन आई कोप अप विथ क्वांट इन 2 months as entrance is coming close? अरमान, कोप अप विथ व्हाट? आपका स्टेटस बताओ. आप बताओ आपने कितना कंप्लीट किया है, क्या क्या कंप्लीट करना है. अरमान, टेलीग्राम पे मैसेज करो, आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है, मेरे को हल्के में लेने दो भाई. मैं वैसे भी वेट कम करना चाहता हूं, थोड़ा और हल्का हो जाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा. अनुष्का, अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो मेनू में जाओ, ऊपर 3 डॉट होगा, मेनू में जाओ, क्वालिटी में जाओ, एडवांस में जाके 180p सेलेक्ट करो. ठीक है, एनी टाइम. राघव, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन. हाँ, S1 अपॉन S2 नहीं लेना है, S2 अपॉन S1 लेना है. ठीक है, चलो, कैन वी मूव ऑन? हियर्स अ थर्ड क्वेश्चन, लेट्स गो. If you've understood what we've done so far, guys, वीडियो पे लाइक कर देना. ओके, चलो, try the next question. अरमान, टेलीग्राम पे मैसेज करो. अरमान, drop in a message in my telegram DM, I'll help you out. Surana Live is my telegram handle. Drop me a message, I'll help you out. Okay, चलो, quickly try this. क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, डोंट रश. ओके, डोंट रश, रीड द क्वेश्चन केयरफुली.
हेलो पुष्पराज, वेलकम। हाँ जी गाइस, इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, आई डोंट वांट यू टू फॉल फॉर दिस। 5/6 आवर, 5/6 ऑफ एन आवर कितना होता है? 5/6 ऑफ 1 आवर, ओके। मतलब 5/6 ऑफ 60 minutes gives you what? 50 minutes less। चलो करो फटाफट से। ओके, कुशाल सेज डी, नन ऑफ दीज। अगर आपका आंसर नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दी अबव है, तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर, ठीक है। अगर ये आपका आंसर है तो बोलो क्या होना चाहिए आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। आशना से सी, आकाश से सी, कुशाल से 60, ओके। Lashit, what about your case? Lekhna and Prince are saying C, okay. Krishna is saying C, Gajendra is saying B, okay. चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड, ओके। अ सेल्समैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 kilometers in 2 hours and 30 minutes, which is 2.5 hours basically. Yes. How much faster? So what is his speed? First of all, his usual speed क्या होगा? What is his speed? Distance upon time, making it what? 20 kilometers per hour, okay. 20 kilometers per hour is his usual speed. Yes. Now what are they saying? How much faster should he travel to make that trip in 5/6 hour less time? So the new time is what? 2.5 hours में 2.5 hours में से we are reducing what? 50 minutes. Yes, 2.5 hours में से we are reducing 50 minutes, या 2 hours 30 minutes में से we are reducing, और या फिर फ्रैक्शन से ही कर लो, 5/2 में से यू आर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट? 5/6 ऑफ एन आवर, अंडरस्टूड। 5/2 में से यू आर रिड्यूसिंग 5/6, अंडरस्टूड। तो ये कितना हो जा रहा है? हाउ मच इज दिस? दिस इज 30 times 10 times 20/12, दैट्स नथिंग बट 5/3 hours, ओके। क्लियर है? इज दिस क्लियर एवरीवन? 5/3 hours इज द न्यू टाइम, ओके। तो अपना नया स्पीड क्या हो गया? व्हाट्स द न्यू स्पीड? डिस्टेंस जो कि सेम 50 किलोमीटर है अपॉन 50/3 hours। इज दैट राइट? सॉरी, 50/30 minus 10 20/12, या सही तो है। 5/3, या 50/3 लिख दिया मैंने इसीलिए 5/3 है, ओके। सो दिस गिव्स अस व्हाट? 30 kilometers per hour। ये 30 kilometers per hour आप लोगों ने देखा, आपने देखा कि 30 kilometers per hour यहां पे है, 30 kilometers per hour यहां पे है, तो यही आंसर होगा ना। ना, read the question carefully. How much faster? मतलब they are not asking what is the new speed, they are asking difference in the speed, कि स्पीड कितना इंक्रीज करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। they are not asking what is the new speed. Yes, so difference in the speed is how much? पहले नया वाला 30 है, पुराना 20 है, मतलब अगर मैं 10 kilometers per hour की स्पीड बढ़ा दूं, then I'll be able to reach the destination in 50 minutes less. Clear? Yes, जिन्होंने भी C बोला है, whoever said C, please read the question carefully.
अर्जेंट मत करो, जल्दबाजी मत करो प्लीज, ओके। मेजॉरिटी पीपल ने सी बोला है, प्लीज चेक। डन। प्रणय कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम पे मैसेज करो प्रणय, ठीक है। कोई भी डाउट है ड्रॉप इन अ मैसेज ऑन टेलीग्राम। 5/2 का मतलब क्या हो गया? 2 hours 30 minutes। 2.5 hours इज बेसिकली 5/2, फ्रैक्शन में कर रहे डायरेक्टली, ठीक है। कोई इश्यू नहीं। कुशल आ जाओ ऋषि, ज्वाइन इन। थैंक यू सो मच लक्ष्य, थैंक यू बड़ी। चलो इसको आप a/n से भी कर सकते हो, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई दैट। यू कैन डू इट यूजिंग a/n रूल ऑल्सो, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट, क्योंकि इट्स नॉट द मोस्ट सजेस्टेड मेथड हियर, ठीक है। सजेस्टेड मेथड नहीं है a/n रूल, बट यू कैन ट्राई इट एट होम, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। सेम रिलेशनशिप पे ही बेस्ड है, क्विकली आंसर दिस। We will be using a method called timeline here, okay? Timeline यूज करेंगे जिससे ये इजी हो जाएगा समझने में। करो गाइस जल्दी। This is a very simple scenario, इसमें इनफैक्ट इक्वेशंस विल बी इजियर, है ना। इसमें इनफैक्ट इक्वेशंस विल बी इजियर दैन यूजिंग टाइमलाइन। इक्वेशन से ही कर लो, आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा इजी भी रहेगा इनफैक्ट। ऋषि सेज D 36, ओके। पंकज ऑल्सो सेज D, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग से हो जाएगा, करेक्ट। रिवर्स इंजीनियरिंग से भी हो जाएगा या फिर इक्वेशन से भी हो जाएगा। प्रिंस ऑल्सो सेज D। चलो ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इफ अ मैन ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। टाइम टेकन इन द फर्स्ट केस इज व्हाट? जो भी अपना डिस्टेंस है अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर्स पर आवर, यस। टाइम टेकन इन द सेकेंड केस इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 42 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो अगर टाइमलाइन लगाएंगे यहां पे, अगर अपन यहां पे टाइमलाइन लगाएंगे तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरा स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर है, if my speed is 30 kilometers per hour, let's say this is the usual time, standard time, ठीक है। 30 kilometers per hour है तो डेस्टिनेशन 10 minutes लेट पहुंच रहे हैं, yes 10 minutes लेट पहुंच रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि टाइम से ज्यादा, यूजुअल टाइम से ज्यादा 10 minutes लग रहा है। वहीं पे अगर 42 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चलाते हैं, अगर 42 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चलाते तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब यूजुअल टाइम से 10 मिनट पहले। तो इसका क्या मतलब हो गया? क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 20 मिनट्स का डिफरेंस है, बराबर गाइस। इन दोनों के बीच में 20 मिनट्स का डिफरेंस है, हाँ बोलो अगर क्लियर है तो। 42 का टाइम और 30 का टाइम क्या है? 20 मिनट्स का डिफरेंस। सो कैन बी पुट इट लाइक दिस कि D/30 माइनस D/42 इज 20 मिनट्स। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यूनिट्स को लेके। ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, अपना क्या 10 मिनट्स।
तो ये जो 20 मिनट्स है इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. This 20 minutes need to be converted into hours. So 20 minutes is equal to how many hours? 20 by 60 hours. समझ गए? Hours में convert कर रहे हैं. Very important to notice, very important to keep an eye on the units. Okay? सिर्फ नंबर मत देखो, units भी देखो. Clear? सो अब क्या होगा, अपना टास्क क्या होगा कि एलसीएम लोअर खत्म करो. राइट, टेक एलसीएम एंड डू इट. 42 5 टाइम्स इज 210. इसको अपन 10 by 30 लिख सकते हैं. 20 by 60 है, इसको अपन 10 by 30 लिखेंगे. ठीक है, थोड़ा सा इजी होगा कैलकुलेशन करने में. सो 210 इज द एलसीएम. 210, दिस इज 7 times d minus 5 times d by 210 should be equal to 10 by 30. This is once, this is 7 times. So what are you getting? 2 times d is 70 or d is 35 kilometers. Got it everyone? 35 kilometers is the right answer. 36 is not. आसिम समझ में आ गया? इक्वेशन में छोटा सा स्मॉल टेक्निकलिटी, आवर्स में कन्वर्ट करना है. क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर था, ये भी किलोमीटर पर आवर था. दैट्स इट. ओके, तो जिन्होंने भी डी बोला है प्लीज चेक. क्लास टाइमिंग्स इज 12 PM, 12 PM, 3 PM, 8 PM. 12 PM and 3 PM on YouTube, 8 PM on the app. Yes. गजेंद्र एलसीएम लिया है भाई. एलसीएम 30 और 42 का एलसीएम 210 है. 30 और 42 का एलसीएम 210 है, तो 7 times 210 यहां पे 5 times हो जाएगा. ठीक है, प्रताप उससे आपको टाइम मिलेगा. प्रताप, व्हेन यू डू इट लाइक दैट यू विल गेट द टाइम. टाइम भी आपको क्या 10 और 10 नहीं यूज कर सकते. यू विल हैव टू यूज 1/6 1/6. 10 by 60 यूज करना पड़ेगा क्योंकि आवर्स में कन्वर्ट करना है टाइम को. दीपक, this is a very unanswerable kind of question. There is no answer for this question. Should I invest time in doing inequalities and modulus or APGP? Questions come from both these places. Questions come from both these places. Okay, Pratap, what you are suggesting, the method that you are suggesting, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? You will have to do 30 into t plus 10 by 60 hours. You will have to convert it into hours. Okay, not minutes. So would you rather do this, find the value of t, then substitute that in one of the speeds and find out the distance, or would you directly find out the distance? Yes, directly finding out the distance makes so much more sense. Okay, chalo, next question. Let's go ahead, try this question. नहीं दीपक, 3 बजे वाले क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है. 3 o'clock वाले क्लास में पीएनसी चल रहा है. हाँ गाइस, ये वाला ट्राई करो. They're traveling with a constant speed.
मतलब क्या, दोनों साइक्लिस्ट का स्पीड जो है वो सेम है, बोथ साइक्लिस्ट हैव द सेम स्पीड, यस सेम स्पीड। सिंपल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। 160 मिनट्स, सुपर्ब। 2.6 आवर्स, ओके वेरी गुड, अप्रोक्सीमेटली 2.6, 2.66, 2.67, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो व्हाट्स हैपनिंग, देयर स्पीड्स आर कांस्टेंट। If speed is constant, what do we know? Distance and time are directly proportional. Yes, speed is constant, distance and time are directly proportional. So let's say there are two cyclists A and B. इनका distance का ratio क्या है? ये 30 kilometers चलाता है. This guy travels 40 kilometers. So the ratio is what? 3:4. Yes, 3:4 should be the ratio of their time also. अगर 3 paths 2 hours है, if 3 paths is 2 hours, if 3x is 2 hours, then x is what? 2/3 hours. What do we have to find out? 4x. What will be 4x? 4x will be 4 into 2/3 hours, which is 8/3 hours. 8/3 hours can be written as 2 hours and 40 minutes, or 160 minutes, or 2.67 hours, anything. Okay, बहुत बढ़िया, superb. Any one of these is your answer, depending upon how they want you to answer it. Superb guys, beautiful. Now before we move on to the next concept, I know ये तारीख पे तारीख ही मिल रहा है इस क्लास को, बट आज नो फोर्स कैन स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग दिस, ओके। दुनिया की कोई भी ताकत हमें ये क्लास करने से नहीं रोकेगी। आज 17 सितंबर, आज 8 बजे ऐप पे है फ्री क्लासेस। स्पेशल क्लास मतलब फ्री क्लास होती है ऐप पे, आ जाना, ओके। सुराना लाइव कोड यूज कर लेना, अगर आपसे पूछे कोड मेरा तो सुराना लाइव यूज कर लेना। आज 8 बजे लिंक में किधर शेयर करेगा? टेलीग्राम पे, ओके। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स। लेट अस टॉक अबाउट यूनिट्स, ओके। व्हाट इज द, क्विकली टेल मी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? जल्दी से बोलो गाइस। अपन स्पीड को मेजर बहुत तरीके से कर सकते हैं। वन ऑफ द वेज इन विच स्पीड कैन बी मेजर्ड इज व्हाट? दी ऑडोमीटर, है ना। स्पीडोमीटर नहीं बोलते उसको, एक्चुअली ऑडोमीटर बोलते हैं, जो आपके बाइक्स या कार्स या कोई भी व्हीकल्स में होते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट? मीटर्स पर सेकेंड। किलोमीटर्स पर आवर इज एक्चुअली नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट. Yes, it is the common unit. It is actually the common unit, especially in Commonwealth countries, okay? Commonwealth countries kilometers and hours use करते हैं, yes. Meter per second is the scientific unit. Standard unit जो है वो meter per second है, okay? And US and other countries that follow the American way, the Western way of doing it, will be what? Miles per hour. They use miles instead of kilometers, okay? समझ गए? It's miles per hour. तो इसका हमें कोई टेंशन नहीं है. We don't have to worry about miles per hour. We just need to know the relation between kilometers per hour and meters per second, okay? So what will be the conversion ratio? We know 1 kilometer per hour basically means 1 kilometer by 1 hour, है ना। 1 kilometer per hour क्या होता है? 1 kilometer by 1 hour, right? 1 kilometer in terms of meters कितना होता है? 1000 meters. 1 hour in terms of seconds is how much? 1 hour कितना seconds होता है? 3600 seconds, right? Which is how much? This is 205 times, this is 218 times. So what do you get here? You get 1 kilometer per hour is 5/18 meters per second, okay? Clear है?
सेम वे इसका इनवर्स 1 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू व्हाट 18/5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, समझ गए? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ये आ गया ना समझ में आपको? I have a doubt for you. If I tell you that x kilometers per hour is equal to y meters per second, अगर मैं बोलूं x kilometers per hour is equal to y meters per second, then which is true? X is greater than y, x is less than y, x is equal to y, or cannot be determined? जल्दी से बोलो। If I say x kilometers per hour is equal to y meters per second, तो कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा? Quickly tell me. प्रणय says D. प्रणय क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना। कुशाल says y is less than x. y cannot be determined. श्रेयसी क्यों cannot be determined? Why? A, C, B सब कुछ आ गया। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या करेंगे? लेट्स अस्यूम लेट x is equal to 18. ओके, लेट x is equal to 18. तो x किलोमीटर्स पर आवर, x किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? x को अगर अपन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 into 5/18, करेक्ट? 18 into 5/18 मीटर पर सेकेंड कैंसल हो गया। आपको क्या मिला कि y is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। x is 18, y is 5. x is 18, y is 5. कौन सा बड़ा है? x बड़ा है। अंडरस्टूड? गॉट इट एवरीवन? समझ गए ना? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर का जो नंबर होगा, किलोमीटर पर आवर का जो नंबर होगा वो मीटर पर सेकेंड के नंबर से ज्यादा होगा। नंबर में वैल्यू तो दोनों की सेम है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड वैल्यू तो सेम है, बट नंबर वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज ये ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई आउट द फर्स्ट एग्जांपल। ये रहा अपना पहला एग्जांपल यूनिट्स को लेके। ट्राई करो। आगे समझ में? बहुत बढ़िया गाइस, सुपर। नहीं ऋषि, नंबर पे नहीं डिपेंड होगा, नंबर पे नहीं डिपेंड होगा। एज लॉन्ग एज x और y जीरो नहीं है तब तक x हमेशा y से ज्यादा रहेगा। हाँ गाइस, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ओके, रिलेटिव स्पीड, वी विल डू दिस लेटर, बट ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। राहुल सेज बी 32 किलोमीटर्स पर आवर। आशीष एंड श्रेयसी आर ऑल्सो सेइंग 32 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कार है, कोई एक कार है, ठीक है, मारुति कार है, और उस कार की जो स्पीड है वो क्या दे रखी है? इस मारुति कार की जो स्पीड है वो क्या दे रखी है? 68 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, ये चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, ड्राइवर इधर बैठा है, इस डायरेक्शन में चल रही है कार।
इसने क्या देखा कि 40 मीटर, इससे 40 मीटर्स आगे एक बस है, ठीक है, तो इससे 40 मीटर्स आगे, लेट्स से दिस इज 40 मीटर्स, ओके, आगे क्या है, एक बस है, यस, एंड दिस बस इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, उसी तरफ जा रहा है, ओके। आफ्टर 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड के बाद क्या हो गया, कार यहां पे आ गया, कार इज 60 मीटर्स अहेड ऑफ द बस और द बस इज 60 मीटर्स बिहाइंड कार, मतलब अभी अपनी जो कार है वो इधर आ गई, समझ गए, जो अपनी कार है दैट कार केम अप हियर। तो अब ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि बस की स्पीड क्या है, what is the speed of the bus, at what speed is the bus going, yes, so the concept we will be using here is relative speed, but यहां पे क्या ध्यान में रखना है, यूनिट्स, yes, यहां से कार को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया, कार को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड्स लग गया, यस, कार को इधर से इधर तक आने में 10 सेकेंड्स लग गए, ओके, या, सो व्हाट डू वी हैव टू कीप इन माइंड कि 10 सेकेंड में कार यहां से यहां तक पहुंच गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कार ने, हाउ मच डिस्टेंस डिड कार ट्रैवल, एंड ऑल्सो बस, तो यहां पे क्या हो रहा, दोनों पैरेलली चल रहे, दोनों मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यस, ऑल दैट आई वांट टू शो यू हियर, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व नहीं करेंगे अभी, विदाउट रिलेटिव स्पीड वी विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि ये मीटर्स में है, ये सेकेंड्स में है, yes, that means to make it more solvable, would you convert this into meter per second or would you convert these into kilometers and this into hours, that's the question, समझ गए, yes, I hope that is clear, है ना, ठीक है क्या, समझ गए क्या, yes, we will solve this question once we are done with relative speed, only thing is I want to show you कि units कैसे important रहते हैं, okay, चलो अभी, okay, before we move on to the next concept guys, new plus course I'm launching a new plus course from 20th of September, 20 September क्या है, मंडे, दिस कमिंग मंडे से मैं नया प्लस कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, 5 PM से 7 PM होंगी क्लासेस, वी विल बी डूइंग ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, दीज क्लासेस विल बी ऑन वीकडेज, ठीक है, प्लस है, ये प्लस पे है, सब्सक्रिप्शन चाहिएगा इस पे। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, ज्योमेट्री में वी विल बी कवरिंग लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, पॉलीगन्स, सर्कल्स। मेंसुरेशन में अपन 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन करेंगे, 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन करेंगे, यस, all of this we will be doing within 6 classes, clear, 6 classes में ये पूरा खत्म करेंगे। This is for people preparing for CAT 2021, also for people preparing for 2022, तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक जो है आई विल बी शेयरिंग टुडे ऑन टेलीग्राम, बट डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस इफ यू आर समवन हु वांट्स टू कवर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, यस, ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग ऑन टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, सुराना लाइव यूज करना मत भूलना। चलो अब चलेंगे एवरेज स्पीड की ओर। अरे समर्थ पहले क्वांट तो खत्म कर लेना भाई, समर्थ क्वांट ही नहीं किया अपन ने, एलआर की बात कर रहे हो, ठीक है, चलो अभी एवरेज स्पीड की तरफ चलते हैं, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, विनीत वीकडे भाई, विनीत वीकडे, मंडे टू फ्राइडे करेंगे, दिस इज अ वीकडे बैच, मंडे टू फ्राइडे,
ओके चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवरेज स्पीड। क्वेश्चन में कभी कभी देते हैं कि कार 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, बाइक 100 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है। सो इफ आई एम ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यस, फॉर 2 hours, डज दिस मीन कि मैं पूरा 120 किलोमीटर्स, मैं पूरा 120 किलोमीटर, फुल 120 किलोमीटर्स आई एम ट्रैवलिंग एट 60? क्या ये सही है गाइस कि आप कहीं पर भी मेरे को रोक के मेरा स्पीड देखेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर रहेगा? जरूरी है? यहां पे भी 60, यहां पे भी 60, यहां पे भी 60, इज इट नेसेसरी? नॉट नेसेसरी, राइट? कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी अदिति जिंदगी में कोई अपना लगता है, राइट? सो व्हाट हैपेंस, कहीं पे खड्डे आ जाते हैं, है ना, कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कहीं पे बच्चे रोड पे खेल रहे हैं, क्योंकि मतलब जिंदगी उनका गेम है, रोड उनका प्लेग्राउंड है, रोड पे ही खेलेंगे भैया, प्लेग्राउंड में नहीं जाके खेलेंगे। यस, कहीं पे आपको कोई मस्त एकदम अच्छा दिखने वाला दिख जाता है कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा तो धीरे कर लेते हैं या थोड़ा सा तेज कर लेते हैं। यस, डज इट मीन कि आपका थ्रू आउट पूरा जर्नी आपका कांस्टेंट स्पीड था 60? कांस्टेंट स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर? नहीं ना, जरूरी नहीं है ना। यस, ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी चालू की, ऐसा नहीं है कि यू स्टार्टेड योर व्हीकल और उठाते ही 60 पे भगा दिया, राइट? 0 to 60 जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, आधा घंटा, अगर आप क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वगैरह चला रहे, जो भी है, वट एवर, it will take you some time, right? So constant speed is not 60. What are they trying to show you? They are showing that कि average speed मतलब क्या, कि पूरा डिस्टेंस का और पूरा टाइम का एवरेज जो है वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज एवरेज स्पीड गाइस? व्हाट इज एवरेज स्पीड? Average speed is nothing but total distance covered upon total time taken. Got it? J है average speed. Is it clear everyone? हाँ, total distance by total time, that is average speed. Yes. एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। ऋषि, अपनी अपनी मर्जी होती है भाई, कोई ज्यादा देर देख ले तो स्लो कर देते हैं, कोई बस ठीक है एक झटके में तो फास्ट कर देते हैं, अपनी अपनी मर्जी है भाई। बहुत तेज हो रहे हो। चलो जल्दी से आंसर करो ये वाला। हाँ 32 करेक्ट था उसका दीपक, 32 was right for the previous one, yes. 50 by 3, 17.5, 16.66 which is 50 by 3, ठीक है, 16.3 Prince, okay, 50 by 3. So what's happening here? देखो, Hamilton can cover 20 kilometers in 1 hour, उसका ये है उसका ट्रैक, ओके। ये बोल रहे हैं कि 20 किलोमीटर्स वो 1 घंटे में कवर करता है एंड 30 किलोमीटर्स वो 2 घंटे में कवर करता है ना। अपन से क्या पूछा है कि उसका स्पीड क्या है ओवर द टोटल डिस्टेंस, दैट मीन्स व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड, है ना। इसका क्या मतलब हो गया कि एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। Average speed is given by total distance covered upon total time taken. पूरा डिस्टेंस क्या उसका 20 + 30 और पूरा टाइम क्या लिया उसने, पहले 1 घंटा फिर 2 घंटा,
So totally 50/3 kilometers per hour or 16.67 kilometers per hour. Okay. What I want you to understand is average speed is not equal to arithmetic mean of the speed. Not always. Okay, not always. It's not always equal to arithmetic mean of the speed. जैसे अगर यहां पे आपने 20 और 30 for 2 hours 15, 20 plus 15/2 बोल के अगर आपने 17.5 बोला है, then what is this? Wrong. अंडरस्टूड? ऊपर किसी ने 17.5 बोला था, कुशाल ने, है ना? तो आपने ये गलती करी है. एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड. ओके, ट्राई करो अगला क्वेश्चन. ट्राई दिस क्वेश्चन. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. तो ये वाला करो फिर. जल्दी. वीडियो पे अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर देना, ठीक है? जब तक वीडियो पे लाइक नहीं किया तो कर देना. आशीष सेज 45. बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन. तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 45 किलोमीटर्स पर आवर, है ना? काफी सिंपल, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, अमेजिंग वर्क गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया. अच्छा, ये देखो, इफ अ ट्रेन गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, ये ए है, ये बी है, ठीक है? इन दोनों के बीच का तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा. ये क्या बोल रहे, ए से बी जाने में उसको 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे कुछ टाइम लगा. दोबारा 50 किलोमीटर्स की स्पीड पे जब वो रिटर्न किया तब उसको कुछ टाइम लगा. यस. जो लोग 45 बोल रहे हैं, ये आंसर गलत है. मैंने क्या बोला था आपको कि एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स. गलत है. क्यों गलत है? आप लोग क्या बोल रहे हो? व्हाट यू आर सेइंग इज कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 40 प्लस 50/2. 2 मतलब क्या? 1 + 1. आप लोग बोल रहे हो कि सेम डिस्टेंस कवर करने में, ये वाला सेम डिस्टेंस कवर करने में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 1 घंटा चलाया, मतलब 40 किलोमीटर था डिस्टेंस, या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 1 घंटा चलाया. क्या ये सही होगा? इज इट ट्रू? 1 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर मतलब 40 किलोमीटर्स. 50 तो 40 है कि 50 है डिस्टेंस? यस. So this is wrong. Okay, ये गलत है. Please don't do this. Best way to answer this question is using assumption. Okay, equation करेंगे, headache होगा. Assumption करते हैं. Let the distance between both these say stations A and B be 200 kilometers. A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर्स ले लेते हैं, ठीक है? Yes, so what will be the average speed? यहां पे डिस्टेंस क्या है? जाने में 200, आने में 200, 200 200 400, करेक्ट? 200. टाइम क्या हो जाएगा? टाइम जाते वक्त 200 at 40 किलोमीटर्स पर आवर और आते वक्त 200 at 50 किलोमीटर्स पर आवर. तो अपना एवरेज स्पीड क्या हो गया? 400 बाई, ये क्या है? 200/40 is 5, 200/50 is 4. So our answer should be 400/9, which is 44.44 kilometers per hour.
से yes if you have understood this. अपन अगर डिस्टेंस को 200 ले रहे तो जाते वक्त का टाइम कितना, 200/40 5 आवर्स. वापस आते वक्त का टाइम कितना, 200/50 4 आवर्स. आ गया ये समझ में सबको? यस, बहुत बढ़िया. अब इसको करने में एक शॉर्टकट है, ठीक है. देयर इज अ शॉर्टकट, देयर इज अ फॉर्मूला. Average speed when distances are equal. When distance covered are equal. Equi distance अगर cover कर रहे हो, same distance अगर cover कर रहे हो, तो average speed can be given as 2 times AB by A plus B. 2 times AB by A plus B. इसका क्या मतलब हो गया कि 2 into 40 into 50 divided by 40 plus 50. A और B उनके individual speeds हो गए. So what will this give us? 40 into 50 is 200. नहीं, 20, 200, 2000, 4000 by 90, which is basically 400 by 9. इतना 44.44 किलोमीटर्स पर आवर. जो हो गया, समझ में आया सबको गाइस? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? अपना शॉर्टकट. दिस विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड आर इक्वल. ओके, नॉट एवरी टाइम. अगर डिस्टेंस इक्वल है तभी, वरना असम्पशन तो है ही है जिंदाबाद. क्लियर? डन एवरीवन? बहुत बढ़िया, सुपर. हमेशा ये ध्यान में रखिए. ओके, चलो. ओके, बिफोर वी मूव ऑन, परसों तक अपन बोल रहे थे कि ये जो ऑफर है वो सिर्फ एक दिन के लिए, बट अभी उसको टाइम को एक्सटेंड किया है. दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, 22 और 23, इफ यू आर प्लानिंग ऑन टेकिंग प्लस सब्सक्रिप्शन, आप अगर 6 महीना, 12, 18 महीना या 24 महीना लोगे, इफ यू टेक एनी वन ऑफ दीज सब्सक्रिप्शंस, you will be getting free additional time, 1 month, 2 months, 4 months, depending upon what you are preparing for. Go ahead, take a subscription as soon as possible. Use my code Surana Live, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. मंडे के पहले पहले ले लो, ताकि मंडे को आप ये वाला क्लास और फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन पैरेलली अटेंड कर सकते हो. ठीक है? इसके अलावा ये सारे बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं. ये 15 को स्टार्ट हो चुका था. दिस इज स्टार्टिंग टुमारो. दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग टुमारो फॉर 22 एंड 21. ओके, यस, डोंट फॉरगेट टू यूज सुराना लाइव फॉर 10% डिस्काउंट. चलो, अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, ट्राई दिस आउट. क्विकली ट्राई दिस आउट. हाँ गाइस, जल्दी से ट्राई दिस आउट. Lashit says 50. Others?
लिखना से 70, आशीष से 56, टेकटॉक से 70, टेकटॉक एकदम ऐसा टिकटॉक जैसा फील क्यों आ रहा? Others guys, simple सा question है, it's a very simple question. This is one of those क्या बोलते हैं, टाइमलाइन वाला क्वेश्चन, राइट? तो अब ये क्या बोल रहे हैं, दे आर सेइंग कि अगर ये सेम डिस्टेंस अगर डेविड 14 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे स्केट करता, इफ ही हैड स्केटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लेस एट 14 किलोमीटर्स पर आवर, यस, वो 20 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा ट्रैवल करता. ही वुड हैव ट्रैवल्ड नॉट डी बट एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर्स. हाउ मच डिस्टेंस दैट डज डेविड ट्रैवल? सो व्हाट डू वी नो? टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे क्या है? टाइम इज द सेम. टाइम जो है कांस्टेंट है. यस, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम. यस, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, स्केटिंग के टाइम और वॉकिंग के टाइम, उसका टाइम दोनों सेम है. वॉकिंग के टाइम वो डी डिस्टेंस कवर करता है एट 10 किलोमीटर्स पर आवर, है ना? सेम वे स्केटिंग के वक्त वो क्या करता है? डी प्लस 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है स्केटिंग के वक्त, मतलब 14 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे. Yes, so what will happen if we cross multiply? We would get 10 times d, ये दोनों equal है ना? 10 times d plus 200 is equal to 14d, और 4d is equal to 200. d is how much? 50 kilometers. Clear? So what are they asking? They are basically asking usual time, है ना? यूजुअल डिस्टेंस. दे आर नॉट आस्किंग स्केटिंग वाला डिस्टेंस, क्योंकि इफ है, इफ मतलब ये कंडीशनल है, दिस इज अ कंडीशन. यस, कंडीशनल का नहीं पूछ रहे. दे आर आस्किंग हाउ मच डिस्टेंस डज डेविड ट्रैवल, व्हाट इज हिज यूजुअल डिस्टेंस. यूजुअल डिस्टेंस क्या है? 50 किलोमीटर्स. से यस इफ यू अंडरस्टूड दिस गाइस. Yes, everyone. तो जिन्होंने भी बी, सी या डी बोला है, समझ में आ गया? टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं है. मेरे को पता है आप लोगों ने क्या किया. आप लोगों ने 14 और 15 को, सॉरी 14 और 10 का एलसीएम लिया आपने. 14 और 10 का एलसीएम 70 है, तो 70 आंसर होगा ना. डिस्टेंस इज नॉट द सेम, टाइम इज द सेम. ओके, इसका क्या मतलब है कि अगर 50 किलोमीटर्स में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाऊंगा, ये टाइम शुड बी इक्वल टू 50 प्लस 20, 70 किलोमीटर्स 14 किलोमीटर की आवर की स्पीड पे. ये क्या है? 5 इज इक्वल टू 5. सैटिस्फाइड एवरीवन? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस आउट. हाँ विनीत, मैंने भी सुना. अब ऐसा लग रहा है कि एनमैट इज नॉट अ बैकअप टेस्ट एनीमोर, है ना? मतलब एकदम रोहित शर्मा विराट कोहली वाला सीन हो रहा और कुछ नहीं. एनमैट इज रोहित शर्मा. एनमैट बोल रहा है मैं कितने दिन तक बैकअप में रहूंगा, मेरे को कैप्टनसी दो. एनमैट बोल रहा है अब हमें फुल इज्जत चाहिए. सच इज लाइफ विनीत, कुछ नहीं कर सकते. सच इज लाइफ.
Rishi says A, 9. Vineet says A, Lekhna says B, Prince says A. Okay. So हमें पता है कि चेन्नई से बैंगलोर का जो डिस्टेंस है, चेन्नई से बैंगलोर का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है ना. नॉर्मली ये वाला डिस्टेंस नॉर्मली या विदाउट ब्रेक्स, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक कितने की स्पीड पे चल सकते हैं? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकते हैं. विथ ब्रेक्स, बीच में अगर अपन हॉल्ट लेंगे, ब्रेक्स लेंगे, विथ ब्रेक्स की एवरेज स्पीड क्या हो जाती है? 45 हो जाती है, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, राइट. अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए लेट्स अस्यूम दिस डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को अपन लेंगे इस डिस्टेंस को 54, 45 दोनों से डिविजिबल, 54 इंटू 5 210, क्या 270 है ना, 270 किलोमीटर्स. लेट्स अस्यूम, लेट द डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई एंड बैंगलोर बी 270 किलोमीटर्स. ओके, तो विथ ब्रेक कितना टाइम लगेगा? विथ ब्रेक टाइम शुड हैव बीन हाउ मच? 270 by 54 which is 5 hours, है ना. विदाउट ब्रेक 5 hours, विथ ब्रेक कितना? 270 by 45 which is 6 hours, है ना. तो अब हमें क्या पता चल रहा है यहां पे गाइस कि ओवरऑल 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रहे हैं. ओवरऑल अपन क्या ले रहे? 1 घंटा एक्स्ट्रा, 1 hour एक्स्ट्रा. यस, 1 hour ऑफ टोटल ब्रेक्स, करेक्ट. 1 घंटा पूरा ब्रेक ले रहे हैं. पर हाउ मेनी आवर्स? देर आस्किंग पर आवर. पर आवर कितना? अपना ट्रैवल टाइम कितना है? 6 hours. यस, तो अगर 6 hours का ट्रैवल टाइम में ब्रेक अगर 1 hour का है, यस, तो पर आवर के टाइम में, पर आवर के ट्रैवल टाइम में ब्रेक कितना है? 1/60 hours है. 1/60 is basically what? 1/60 into 60, 10 minutes. Got it? Everyone? So 10 minutes is your answer, not 9. Clear है everyone? हाँ बोल लो फटाफट से. डन? कोई डाउट इधर? आई होप नो डाउट्स, है ना. सर अगर वो बंदा गाड़ी अपने घर ही नहीं पहुंचा, अरे वो पहुंच जाएगा भाई, वो पहुंच जाएगा. Any other method you can go for the ratio. If you want you can go for the ratio. Distance दोनों सेम है, right? So 54 into the time taken, 54 into speed into time is distance, है ना. तो speed into time is equal to 45 into t plus some stoppages, breaks. Yes, तब हमें क्या मिला? 54t is equal to 45t plus 45b. What does this give us? This gives us 9 times t is equal to 45b. मतलब टाइम पर टाइम पे आपको कितना? 5 टाइम्स का ब्रेक मिलेगा. Yes, is it clear now? तो ओवरऑल टाइम अगर आप ढूंढ सकते हो, इफ यू गो फॉर ओवरऑल टाइम इट विल बी व्हाट? 5 टाइम्स द ब्रेक. मतलब ब्रेक इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय 5. क्लियर?
यस, इसको रख के फिर आप आगे क्या करोगे? व्हाट विल यू डू अहेड ऑफ दिस? टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम्स ब्रेक, कहीं पे एक दोनों पे अस्यूम कर लो, यू विल गेट द डिस्टेंस इन टाइम टर्म्स ऑफ बी एंड देन कैलकुलेट, बट दिस विल बी वेरी लॉन्ग एंड दिस विल बी कंफ्यूजिंग एज वेल, so it's easier done by assumption. Okay, चलेंगे next. Okay, next question, this is the last one for the day. Guys, if you haven't hit like on this video yet, please कर देना, ये आखिरी question है, ठीक है? Try this जल्दी से. Right, Ayush. Lashit says 1. तीन बजे को होगा कृष्णा. नेक्स्ट लेक्चर इज एट 3 PM. We will be doing PNC then. टाइम स्पीड डिस्टेंस कल होगा 12 बजे. टुमारो 12 o'clock टाइम स्पीड डिस्टेंस. ओके, due to bad weather 3 hours. Okay, Diksha says C. Prince, Vedant and Lashit are saying A. So what are they saying here? There is a common distance of 600 kilometers that needs to be covered. 600 kilometers. Okay, its average speed for the trip was reduced by 200 kilometers per hour. Let's say उसका average speed s था, यहाँ पे speed क्या हो गया? s minus 200. Yes, flight of time यहाँ पे t था, यहाँ पे क्या हो गया? 30 minutes से increase. 30 minutes is basically half an hour, 0.5 hours. Clear? They want us to find out this t. They want us to find out this t. Okay, so what can we do? We can either equate for the distance, but क्योंकि यहाँ पे distance a, यार क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे distance ही दिया हुआ है directly, we can go for the difference in the speed or difference in the time, either which ways. ठीक है, तो we'll go for the difference in the time. Difference in the time will go. Okay, so what is the difference in the time? ये वाला और ये वाला के बीच में difference क्या है? 0.5. so 600 by s minus 200 minus 600 by s, yeah, is equal to how much? Half an hour, which is 1/2 hours. Got it? We will end up getting what? यहाँ पे we will end up getting decimals, I mean quadratic equation. So it's better if we go for the time का difference ले लो, मतलब speed का difference ले लो. So speed 2 minus speed 1, speed 1 minus speed 2 is how much? 200 kilometers per hour. Yes, speed 1 क्या होगा? 600 by t minus speed 2 क्या होगा? 600 by t plus 0.5. This should be equal to 200. Yes, so what will we do? Let's try different answer choices. यहाँ पे 4 आंसर चॉइस है, यहाँ पे भी वैसे तो क्वाड्रेटिक आंसर इक्वेशंस आएगा, बट क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग से हमें आंसर चॉइसेस मिले हुए, we can directly do it. Yes, because a lot of people have been telling A. Let's try A. If t is 1 hour,
If t is 1 hour, then what will happen? 600 by 1 minus 600 by 1.5 should be equal to 200. Is it true though? Is it true? 600 by 1 is 600, 600 by 1.5 is 400. Is it equal to 200? Yes. Satisfies. This is our answer. Got it? A lot of people have been saying C, 3. Let's try that. Option C, time is equal to 3 hours. अगर time 3 hours है तो 600 by 3 minus 600 by 3.5. Is it equal to 200? Definitely not. 600 by 3.5 will be in decimal. This is 200 itself. So no. 300 is wrong. Got it, guys? Clear? What's our answer? Option A, 1. Done? Correct, Deepak. So instead of going with difference between time, फिर आप speed निकालोगे quadratic equation से, फिर वो substitute करोगे, that will eat up a lot of time. Fastest way, difference between the speeds कर लो, क्योंकि time आप directly reverse engineering कर सकते हो. ठीक है? Always remember guys, answer choices deserve to be exploited. Exploit का मतलब क्या है कि उनका full advantage लो. ये इसीलिए दिए होते हैं आपको कि आप उनका full advantage ले सकते हो. ठीक है? तो आंसर चॉइस अगर आपको दिखे तो उठाओ, फुल फायदा उठाओ. मत सोचो कि आंसर चॉइस क्या फील करेगा, बेचारा उसका फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए कहीं. ठीक है? ऑल्सो गाइस, सब्सक्रिप्शन लेने का अभी से बेटर कोई टाइम नहीं है. यस, स्टार्ट टेकिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर मॉक्स, फॉर लाइव क्लासेस. आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगे, थियोरी क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, क्विज क्लासेस, doubt clearing classes, everything. You will get unlimited weekly test, mock test, full length test, sectional test, topic wise test, and you can also take test or you can practice separately. Practice questions भी होते हैं. अलग से आपको study materials PDF forms में मिलेंगे. You can download those PDF form directly from the educators class. You will get unlimited access to everything available on the app. ऐप पे जो भी है सब कुछ पे आपको unlimited access मिलेगा. And structured courses, आप कितने भी structured courses join कर सकते हो. You can join as many number of batches, as many number of courses. आप कितने भी educators को follow कर सकते हो. आप एक क्लास कितनी भी देर तक देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो. Yes. Now if you take Iconic, आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें, बट इसके साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो आपने कितना कितना क्या क्या कंप्लीट किया है, एंड यू कैन पर्सनलाइज इट. आपको 1-on-1 लाइव मेंटरिंग सेशंस मिलेंगे जहां पे आपके मेंटोर जो होंगे आपको डायरेक्टली मेंटोर करेंगे, नो ग्रुप मेंटरिंग. यस. टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे गलत हुए, व्हाट टॉपिक्स यू आर वीक एट, व्हाट टॉपिक्स यू आर स्ट्रांग एट, एंड आपको एक्सपर्ट के गाइडेंस भी मिलेंगे. यस, इन द फॉर्म ऑफ बूस्टर सेशंस. तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड सुराना लाइव व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन. 2021 कैट और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए 6 months, 22 के लिए 12 months एंड 23 के लिए 24 months का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. मेरा कोड सुराना लाइव यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है? 6 months के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे पर वीक, 3 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे पर वीक, 2 फुल लेंथ अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट पे मिलेंगे, और हर चीज का आपको डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस भी मिलेगा. यस, यू नो व्हाट कोड टू यूज, सुराना लाइव. Okay guys, thank you so much for being a part of this session. I will see you at 3 PM on permutation and combination, and then at 8 PM for ratio and proportion practice class. Okay,
चलो guys, thank you so much for being a part of the session. I'll take a leave, जाओ मस्त खाना वाना खाओ, and then come back at 3 p.m. Until then, keep learning. Let's crack it.